So hey hi guys, this is lecture date 1 and part 2. So previous lecture में we understood कि why do we want to do an audit of financial statement, because shareholder को we have to give information and all those things. How to audit a financial statement? It is just like comparing the marking pattern with the answer sheet. Marking pattern is your applicable FRF, Ind AS and all those things, and your answer sheet is your financial statement. So when you compare the applicable FRF with the financial statement, you will get to know if there is any discrepancies. The discrepancies are not only misstatement, it can be error also, but the discrepancy is a discrepancy. Depending upon the magnitude of a discrepancy, it becomes material, and depending on the nature of discrepancy, it becomes misstatement. Okay, and difference will come under ABCD. That is, the difference will come under difference can come under various things, like it can the difference will be of amount, or difference can be due to presentation issues or classification issues or disclosure issues. That is ACPD. तो जो तुम्हारा क्या उसको कहते हैं एप्लीकल FRF बोलता है कि अमाउंट ये होना चाहिए था, देयर इज अ डिफरेंस इन अमाउंट even though it was correctly presented in like presentation as per schedule 3 it is, but the amount which is given is incorrect, then again it's a misstatement. Even though the amount is correct, the classification is incorrect, even though it is presented on the schedule 3, but classification should be happening under like short term liability, and here shown under long term liability. So other classification is an issue. So there are 4 factors to check whether there is difference or not. What is the 4 factors? ACP and D. Then auditor will always be affected by material misstatement. Can an auditor give guarantee or absolute assurance? No, it will only give reasonable assurance. And what is reasonable assurance? Reasonable assurance is a high assurance but not absolute assurance. Okay. And how do you get a reasonable assurance? You have to obtain audit evidence. If you get an audit evidence, you get a reasonable assurance. Reasonable assurance of issue or no issue. तो अगर इशू भी है तो यू नीड टू हैव एन ऑडिट एविडेंस दैट यस देयर इज एन इशू. अगर इशू नहीं है तो यू शुड हैव एन ऑडिट एविडेंस दैट देयर इज नो इशू. How many audit evidence you want and what audit evidence you want? That's what sufficiency and appropriateness of audit evidence. We had earlier discussion on this. Sufficiency will be checked by quantity and quality. Appropriateness will be checked by reliability and relevance. Okay. So relevance के ऊपर we had discussed कि कौन सा assertion को कैसे check करना हो. Like for example we read about balance sheet assertion. Balance sheet assertion is account balance. Account balance जो भी होता है that will be checked by ERCV. Correct. ERCV is your existence, then R for rights, C for completeness, V for valuation. If अगर P&L का कोई assertion है, that will be checked by how many things? 5 or 6 things, which is ORCV something it was. What was that? It was OCACC. What was it? OCACC. Observation, then completeness, then classification, then your accuracy and all those things. Cut off. Okay. So that's what we read. Now we'll come to lecture of today, which is day 1 but part 2. So 2 नोट हमें पढ़ना था, एक असर्शन के बारे में और एक रेलेवेंस के बारे में. और नाउ विल बी रीडिंग अबाउट रिलायबिलिटी. सो कौन सा ऑडिट एविडेंस वी शुड टेक सो दैट इट बिकम एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. तो कोई भी अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस वो होगा जो रिलायबल है. कैसे मानेंगे कोई भी जो ऑडिट एविडेंस तुम्हारे पास आया है वो रिलायबल है? How to check that whether the audit evidence which you have taken is reliable or not? Very easy. You need to check the source of that audit evidence, the circumstance in which the audit evidence was taken, and the nature of the audit evidence taken. Like for example, if you are telling that sir, vendor master is clear,
okay, the vendor master which you have taken might be relevant, the procedure which you have done might be relevant, but how do you confirm whether the vendor master which you have taken is correct? ऑडिट एविडेंस तुमने किसी पे किया है लेकिन वो बेस ही गलत था, देन ऑडिट एविडेंस ही गलत है तुम्हारा. इवन दो एवरी यू हैव द क्वांटिटी, यू हैव द क्वालिटी, बट क्वालिटी डज नॉट ओनली डिपेंड अपॉन द रेलेवेंस ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म, बट ऑल्सो व्हाट एविडेंस इज टेकन, फ्रॉम वेयर इट इज टेकन, लाइक व्हाट इज द reliability of that audit evidence, correct? Yeah. So कोई भी ऑडिट एविडेंस कब रिलायबल होगा, उसका 3 फैक्टर है. पहला सोर्स, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दैट ऑडिट एविडेंस. अगर वेंडर मास्टर इफ यू आर टेकिंग फ्रॉम द ERP इटसेल्फ देन इट इज रिलायबल. अगर एक्सेल शीट पे बनाया हुआ है वेंडर मास्टर इट्स नॉट रिलायबल. तो सोर्स इज इम्पॉर्टेंट. सेकेंड, सोर्स के बाद आता है तुम्हारा सर्कमस्टेंसेज. तुम कौन से सर्कमस्टेंसेज में यू हैव टेकन दैट वेंडर मास्टर. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी दिन डाउन टाइम चल रहा था ऑफ दैट ERP एंड यू टूक वेंडर मास्टर फ्रॉम दैट, तो वो गलत आएगा क्योंकि डाउन टाइम उसमें ERP में कुछ गलत था, तो तुम उस टाइम वेंडर मास्टर लेकर ऑडिट करो, इट्स यूजलेस. देन द थर्ड थिंग इज whether the nature of that audit evidence is correct or not. लाइक फॉर एग्जाम्पल वेंडर मास्टर का क्या नेचर है, क्या वो वेंडर ही मास्टर है या वो कस्टमर मास्टर भी है या फिर कोई दूसरा चीज़ भी है, तो उसका नेचर भी सही होना चाहिए. सो टू हैव अ रिलायबल ऑडिट एविडेंस यू शुड चेक द 3 फैक्टर्स ऑफ दैट एविडेंस, वेदर द सोर्स इज करेक्ट, वेदर द नेचर ऑफ द ऑडिट एविडेंस करेक्ट, एंड वेदर द दिस थिंग circumstance is correct or not in which you took this thing. Okay. हर वक्त कोई भी ऑडिट एविडेंस का जो सोर्स होगा अगर वो एक्सटर्नल है ना देन इट इज़ ऑलवेज बेटर देन इंटरनल. अगर वेंडर मास्टर तुम ERP से ले रहे हो इट्स एन एक्सटर्नल थिंग, तुम एक्सेल से नहीं ले रहे हो किसी स्पॉक से. ओके. सर्कमस्टेंसेज. तो ऑडिट एविडेंस विच इज ऑब्टेन डायरेक्टली बाई ऑडिटर इज ऑलवेज बेटर देन इनडायरेक्टली थ्रू मैनेजमेंट. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम बोल रहे हो कि भाई मुझे वेंडर मास्टर चाहिए, स्पॉक क्या कर रहा है ERP से निकाल के कुछ एडिट करके तुमको दे रहा है, देन इट इज़ इनकरेक्ट, राइट? यू शुड हैव टेकन डायरेक्टली फ्रॉम द ERP. तो जो ऑडिट एविडेंस डायरेक्टली ऑडिटर ले सकता है इट इज़ वे ऑलवेज बेटर देन योर इनडायरेक्टली थ्रू मैनेजमेंट. ओके. नेचर, कौन सा डॉक्यूमेंट्री ऑडिट एविडेंस जो होता है वो ऑलवेज बेटर देन ओरल ऑडिट एविडेंस, करेक्ट? कोई आदमी लिख के दिया कि येस आई एक्नॉलेज दैट लोन वाज नॉट प्रोसेस ड्यूरिंग द पीरियड, इट इज ऑलवेज बेटर देन ओरल थिंग कि हाँ भाई स्पॉक के साथ ये डिस्कशन एंड दे वर टेलिंग कि देयर वाज नो लोन टेक डिसबर्स्ड ड्यूरिंग द पीरियड, करेक्ट? यस. एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का ऑडिट एविडेंस इज ऑलवेज वे बेटर देन सॉफ्ट कॉपी. अगर सॉफ्ट ईमेल पे किसी ने लिख दिया है कि यस सर वी हैव नॉट डिसबर्स्ड एनी लोन, उससे हर वक्त बेटर होगा कि अगर कोई पॉलिसी वो दे दे, लिखा हुआ पॉलिसी आपको हार्ड कॉपी में कि भाई हम एक तो पॉलिसी दिया कि लोन नहीं डिस्पर्स करते हैं और एक बैंक स्टेटमेंट दे दिया कि हाँ भाई हमने डिस्पर्स नहीं किया. सो इट इज ऑलवेज वे बेटर देन दैट. ओके. नाउ लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक विच इज एक्चुअली अ टॉपिक. ओके. दिस टॉपिक इज किंग ऑफ ऑल एसेज. जितने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है उसका जो किंग है ना उसके बारे में हम पढ़ने वाले. सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का किंग है ये. कौन सा ऐसे है भाई? ये ऐसे 200 है. ऐसे 200 नाम सुना लग रहा है, सुना हुआ लग रहा होगा, लेकिन नाम इसका क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ ऐसे 200? ऐसे 200 इज overall objectives of an independent auditor and conduct of audit as per standard on auditing, which means UIA CASA. SA 200 is equal to UIA CASA. What does that mean? Overall objective of independent auditor and conduct of audit as per applicable standard, audit standard. Okay. Yes, UIA CASA. तो ये तो नाम हो गया. What does this audit standard says? What does this SA 200 tells? SA 200 tells you have to obtain reasonable assurance that FS are free from material misstatement. कि हाँ भाई ऑब्टेन करो ऑडिट एविडेंस कि हाँ भाई फिनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है. ओके. व्हेन यू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस यू नीड टू गिव एन ओपिनियन देयर ऑन कि हाँ भाई the audit we did the audit of financial statement and it is true and fair. तो ओपिनियन तुमको देना होगा. ओपिनियन कैसे दोगे? यू हैव टू रिपोर्ट इट एंड कम्युनिकेट एज पर द. सिर्फ रिपोर्ट
तुमको ऐसे नहीं कि तुम्हारा अपना स्टैंडर्ड है तुम उस हिसाब से दे दिए, नहीं। ऑडिट स्टैंडर्ड जैसे रिपोर्ट करने के लिए बोलता है कि हाँ पहले ये पैरा आएगा, फिर ये पैरा आएगा, फिर ये पैरा आएगा, on that basis you have to report that. So essay 200 tells you three things. First of all, obtain audit evidence to obtain audit evidence to check if there is any material misstatement in the financial statement. Then express an opinion thereon and report as per essay. Obtain audit evidence, create an opinion on it, and then report it. To obtain reasonable assurance that FS are free from material misstatement. ये जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो है, जो इसका हम बोल रहे हैं कि हाँ भाई FSMM नहीं है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट जरूरी नहीं है किसी फ्रॉड हो सकता है वो एरर भी हो। अगर एरर को रेक्टिफाई नहीं किया गया है तब भी उसके ऊपर तुमको ओपिनियन बना के देना होगा कि हाँ देयर इज एन एरर बट इट इज नॉट रेक्टिफाइड। ओके, सो व्हाट डज essay 200 tells? Essay 200 tells you to obtain audit evidence. What type of audit evidence? कि that FS is free from material misstatement. Material misstatement can be due to fraud or error. Once you have obtained audit evidence, you should express an opinion that FS are prepared in all material respect as per applicable FRF, and it gives true and fair view. And once you have created an opinion, you have to report it as per the standards on auditing. Okay. अब हम लोग कुछ रिस्क के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. There are three types of risk, actually three types of risk which is then classified under two things. So एक चीज़ है inherent risk. What is inherent risk? If I give you a statement, तो inherent risk is the susceptibility of an assertion about account balance, class of transaction or disclosure to a material misstatement individually or aggregate before considering internal control. ये लिखा हुआ है. How do I will tell? See, before considering any internal control, you think that there is no internal control. So if there is no internal control, what is the chances that an assertion will be materially misstated? So if there is no internal control, what are the chances that whatsoever is written in financial statement is incorrect? That is called inherent risk. मतलब कोई ये नहीं जो तुम्हारे दिमाग में आता हो कि भाई कोई हालत में ये रिस्क तो रहेगा ही, इनहेरेंट रिस्क, उसको बदल नहीं सकते, उस तरीके से डोंट थिंक. व्हाट इज इनहेरेंट रिस्क? इनहेरेंट रिस्क है कि भाई अगर कोई भी इंटरनल कंट्रोल नहीं लगाया ना, अगर कोई कंट्रोल नहीं, यू जस्ट स्टार्टेड अ बिजनेस and there is no internal control itself, there is no person who is reviewing, no person who is approving, कुछ नहीं हो रहा है. किसी को मन कर रहा है पीओ रेस करने का, गया पीओ रेस किया, खत्म. किसी को मन कर रहा है इनवॉइस अकाउंट करने का, इनवॉइस अकाउंट किया, बस पेमेंट चला गया, कोई अप्रूवल नहीं हो रहा है, बैंक अपलोड फाइल कुछ बन नहीं रहा है, सीधा पेमेंट हो रहा है. तो अगर किसी बिजनेस में अगर इंटरनल कंट्रोल नहीं है तब कितना रिस्क है कि तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत होगा. तो अगर कोई इंटरनल कंट्रोल नहीं है तब तुम यही फील करोगे कि जो लोग सब काम कर रहे हैं ना वो लॉयल है कि नहीं कंपनी के लिए, वो तो तुम चेक नहीं कर सकते हो. तो वो एक एस्टिमेशन लगाया जाता है कि हाँ भाई अगर इंटरनल कंट्रोल नहीं है और कुछ 10 लोग काम कर रहे हैं, हो सकता है कि 2 लोग फ्रॉड कर रहे हो, तो तुम्हारा 20% इनहेरेंट रिस्क हो गया. ठीक है. तो व्हाट इज इनहेरेंट रिस्क? इनहेरेंट रिस्क इज द ससेप्टिबिलिटी. व्हाट इज द चांस? What is the chance of an assertion to be materially misstated before considering internal control? ये लिखा है, जो हम समझाए हैं उस तरीके से समझोगे तो ऐसे बोलेंगे कि before considering any internal control, what are the chances of an assertion to be materially misstated? Okay. और जो कोई भी असर्शन अगर मटेरियली मिसस्टेट हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई एक असर्शन मटेरियल मिसस्टेट होगा तो उसको इनहेरेंट रिस्क बोलेंगे. नहीं, हो सकता है कि एक बार में 4-5 असर्शन मटेरियली मिसस्टेटेड हो, या हो सकता है कोई एक ही स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड हो. तुम कैसे कोई भी मिसस्टेटमेंट को बोलो कि ये मटेरियल है कि नहीं? एक थ्रेशोल्ड हम लोग मार्क सेट करते हैं कि हाँ ये अमाउंट जो होगा इसको मटेरियल कहेंगे, इसके ऊपर जैसे ही गया तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो जाएगा. इसका एग्जाम्पल ये है कि हमने मटेरियलिटी सेट किया है 5 लाख के ऊपर, एक असर्शन है जिसका अमाउंट 6 लाख रुपए है और वो मिसस्टेटेड है, तो इसको तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट कर देंगे. एक आगे जाओगे देखोगे 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और तीनों स्टेटमेंट
एक 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 3 स्टेटमेंट और तीनों मिसस्टेटेड है, तो ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो, मटेरियल मिसस्टेटमेंट एक नहीं बताओ। पहला जो है वो 1 लाख का मिसस्टेटमेंट है, दूसरा जो है वो 3 लाख का मिसस्टेटमेंट है, और तीसरा जो है वो 2 लाख का मिसस्टेटमेंट है। तो तीनों अलग अलग देखोगे तो 5 लाख का मटेरियल लिमिट पर नहीं आ रहा है, तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट वैसे नहीं कहेंगे, लेकिन ये इंडिविजुअली देखा गया। अगर मिला के देखोगे तो एग्रीगेट में देखोगे तो ये तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, करेक्ट। और असर्शन का मतलब ये नहीं होता कि बैंक अकाउंट इज इक्वल टू 5 lakhs। इट इज जस्ट नॉट वन असर्शन, इट्स हैविंग 4 असर्शन, क्योंकि ये बैलेंस शीट का ERCV का। तो उसमें एग्जिस्टेंस देखोगे, राइट देखोगे, और आगे का चीज़ देखोगे तुम, तो कहीं कुछ तुमको मिस्टेक मिलेगा। हो सकता है कि बैंक ट्रांजैक्शन में 50 बैंक ट्रांजैक्शन गलत है, 50 एक ट्रांजैक्शन का दाम सिर्फ 50,000 रुपया है, तो मटेरियल नहीं हुआ। लेकिन 50 ट्रांजैक्शन को देखोगे तो वो 5 लाख के ऊपर गया, तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो गया, तो बैंक में तुम्हारा मिसस्टेटमेंट है। Okay, yeah. Inherent risk you understood? Okay. Now let's read control risk. What is control risk? जो बुक में लिखा हुआ है, it is a risk that material misstatement, individually or in aggregate, will be in an assertion of ABCD, account balance, class of transaction, disclosure, but such material misstatement would not be PDC, that is prevented, detected and corrected ऑन टाइमली बेसिस बाई इंटरनल कंट्रोल। क्या बोले? कंट्रोल रिस्क का मतलब ये होता है ना भाई कि अगर कंट्रोल तुम लगाए भी हुए, पहले था कि अच्छा कोई कंट्रोल नहीं था, कोई भी प्योर रेस कर दे रहा है, कोई भी अप्रूव कर दे रहा है, अप्रूवल नहीं हो रहा है, प्योर रेस कर रहा है कोई आदमी, कोई पेमेंट कोई भी दे रहा है, इनवॉइस कोई भी अकाउंट कर रहा है, तो पहले ये चीज़ था। अब तुम इंटरनल कंट्रोल लगाए कि प्योर रेस करने से पहले अप्रूवल चाहिए हमको, पेमेंट करने से पहले अप्रूवल चाहिए हमको, इनवॉइस अकाउंट करने से पहले अप्रूवल चाहिए हमको, तो तुम कंट्रोल लगा दिए। लेकिन क्या चांसेस है कि जो तुम कंट्रोल लगाए वो काम करेगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि जो अप्रूवर है वही फ्रॉड किया हुआ हो, या कहीं कोई कंट्रोल में ही जो तुम कंट्रोल बना उसी में कुछ लूपहोल हो। लाइक फॉर एग्जांपल तुम बोल दिए कि PO अप्रूव करने का ऑथराइजेशन मैट्रिक्स ये कि 1 से 10 लाख का ये आदमी करेगा और 11 लाख से 20 लाख तक का ये आदमी करेगा। तो 1 से 10 तक का अप्रूवल है, 11 से 20 का अप्रूवल है, लेकिन 10 से 11 का तो अप्रूवल मैट्रिक्स ही नहीं है, तो ये तो लूप होल है। तो कंट्रोल लगाने के बाद भी कोई आदमी कर सकता है कि 10,50,000 का PO रेस करेगा, अप्रूवल के लिए हो जाएगा ही नहीं, तो PO रेस हो गया, इनवॉइस अकाउंट हो जाएगा बाद में जाके, करेक्ट। तो इवन आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल इन द सिस्टम, इन द कंपनी, देयर इज अ चांस ऑफ मिसस्टेटमेंट, and this chance of misstatement is called control risk. Okay, risk in control. What is a risk if control is not working? That means what is control risk? It is a risk that a material misstatement will be in assertion. Misstatement होगा assertion में, गलती बदमाशी होगा misstatement में, even though we have a control, but such control is not able to PDC, that is it is not able to either prevent the issue, either detect the issue or correct the issue on timely basis. Like for example PO अप्रूवल मैट्रिक्स में 10 से 11 का नहीं था, तो ये प्रिवेंट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा मैकेनिज्म था जहाँ पे प्रॉपर है 1 से 10, 10 लाख 1 रुपया से 20 लाख, तो हम लोग प्रिवेंट कर देंगे। लेकिन अगर हमको डिटेक्ट करना है, तो डिटेक्ट करने के लिए जैसे ही अगर कोई बदमाशी किया कि 10,50,000 पे कर दिया, या एकदम 20 लाख पे एकदम प्रॉपर किया है, और लेकिन जो रेस किया है ना, जो तुम्हारा ये है क्या नाम है, जो अप्रूवर था वही फ्रॉड किए हुए था, तो वह क्या किया कि 20 लाख का रेस कर दिया, अप्रूव करवा दिया। लेकिन डिटेक्ट करने के लिए क्या रखेंगे कि जैसे 20 लाख के ऊपर का अगर कुछ जा रहा है ना, या 20 लाख का जा रहा है, तो सिर्फ एक अप्रूवर नहीं 2 अप्रूवर आएगा, तो इससे डिटेक्ट हो जाएगा कि हाँ गलती हुआ था। या फिर डिटेक्टिव कंट्रोल क्या आएगा इसकी जगह पे कि अगर 20 लाख का PO रेस हुआ है, तो जैसे ही वो वेंडर के पास जाएगा तो वेंडर कंफर्म करेगा कि भाई जनरली आपके पास तो 10 लाख का आता है, आप हमको 20 लाख का कैसे दिए हैं, एंड ऑल दोज थिंग्स। तो वो डिटेक्टिव कंट्रोल हो गया विद इन द एंटिटी। या फिर कोई हमारी तरफ से प्रोक्योरमेंट टीम से फ़ोन करके बोलेगा सर हमने 20 लाख का रेस किया है, आप 20 लाख का आप सामान बेच रहे हैं, या फिर तुम GRN में देख सकते हो। फिर आता है करेक्टिव कि हाँ भाई ठीक है, प्रिवेंट हम लोग कर दिए हैं, डिटेक्ट भी कर दिए हैं, लेकिन प्रिवेंट और डिटेक्ट होने के बाद अगर चलो कोई गलती किया भी, पता चल गया कि हाँ भाई वो जो अप्रूवर है वो बदमाशी किए हुए था, तो उसको करेक्ट कैसे करेंगे? करेक्टिव कंट्रोल के लिए
वहाँ पे कोई रिव्यू सिस्टम होना चाहिए हर 3 महीना पे कि हर बार कौन बदमाशी कर रहा है। दैट इज़ अ करेक्टिव कंट्रोल। जैसे पता चल कि एक आदमी 2 बार बदमाशी किया, निकाल दो उसको। करेक्टिव कंट्रोल। करेक्ट, करेक्ट, नो इश्यूज। ओके, so what is control risk? Control risk is a risk that even after application of control within the entity, there is a risk that such control will not be able to do PDC on timely basis, and due to which there will be a misstatement in the assertion. Okay, okay. अब एक बात बताओ, पहले था इनहेरेंट रिस्क कि भाई अगर कोई कंट्रोल नहीं है तो क्या रिस्क हो सकता है। अब हम कंट्रोल लगा दिए तो तुमको क्या लगता है कि अब कोई रिस्क ही नहीं बचेगा। सो या सो अगर एक बार तुम क्या लगता है इनहेरेंट रिस्क था कुछ और उसके बाद तुम कंट्रोल लगा दिए तो कोई रिस्क नहीं बचेगा तुम्हारे पास, अब खत्म कंप्लीट हो गया। अब ऑडिट, अब तुम्हारा कोई असर्शन में स्टेटमेंट आएगा ही नहीं। श्योर नहीं भाई। इवन आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल देयर इज अ कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क था कि कोई कंट्रोल नहीं है तो रिस्क है, लेकिन कंट्रोल लगा दिए हैं तब भी कंट्रोल रिस्क तो है ना कि कंट्रोल ही तुम्हारा पीडीसी नहीं कर पा रहा है। सही बात है भाई। तो भाई इनहेरेंट रिस्क है लगाने, इनहेरेंट रिस्क था उसके बाद भी हम कंट्रोल लगा, इनहेरेंट रिस्क था तो कंट्रोल लगाए, लेकिन कंट्रोल लगाने के बाद भी अब डर लग रहा है कि कंट्रोल रिस्क की कंट्रोल काम नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑडिट करते हैं। ऑडिट क्यों करते हैं कि डिटेक्ट करने के लिए कि कोई भी कंट्रोल गलत काम कर रहा है कि नहीं, जो भी कंट्रोल लगाए हुए हैं वो कंट्रोल इफेक्टिवली काम कर रहा है कि नहीं, उसके लिए ऑडिट होता है। तो ऑडिट में पकड़ा जाएगा कि अगर कोई भी मिसस्टेटमेंट होता है तो ऑडिट में पकड़ा जाएगा। वेरी इजी। इनहेरेंट रिस्क था क्योंकि कोई कंट्रोल नहीं था, कंट्रोल लगा दिए। 100% रिस्क था, कंट्रोल लगा के उस रिस्क को हम कर दिए 20% पे, क्या 20% रिस्क है। 80% जो रिस्क था वो कंट्रोल मैकेनिज्म की वजह से अब वो खत्म हो गया, हमें स्टेटमेंट नहीं जाएगा, लेकिन तब भी 20% रिस्क है। क्यों? क्योंकि कंट्रोल रिस्क है कि हाँ भाई कंट्रोल ठीक से काम नहीं कर रहा है। अब कंट्रोल ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसका ऑडिट कर लूँ, तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारा प्रॉपर कितना रिस्क है उस बिजनेस में। करेक्ट, करेक्ट। तो एक चीज़ आता है उसको कहते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जिसको कहते हैं ROMM। व्हाट इज ROMM? रिस्क दैट फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड प्रायर टू ऑडिट। मतलब ऑडिट से पहले, जो ऑडिट नहीं हुआ अभी, तो ऑडिट से पहले कितना चांसेस है कि ये जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है वो मटेरियली मिसस्टेटेड है। फिर से बोलो, हम एक फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं, अब हम कैसे पता करें कि वो कितना % चांस है कि इसमें गलती होगा। भाई बहुत ईजी है। फिनेंशियल स्टेटमेंट तुम कैसे बनाए हो, जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसके बेसिस पे। और ट्रांजैक्शन कौन से बेसिस पे हुआ है? इंटरनल कंट्रोल जो था उसी के अंदर से ट्रांजैक्शन हुआ होगा। पीओ, अगर परचेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रहा है तो पीओ रेस हुआ होगा, और पीओ रेस करने के लिए कंट्रोल है तुम्हारे पास, इंटरनल कंट्रोल। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाए वो इंटरनल कंट्रोल पास होके ही आया है। करेक्ट। लेकिन इंटरनल कंट्रोल में भी तो रिस्क था, कंट्रोल रिस्क था। तो क्या जरूरी है कि जो फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाए वो सही बनाए? नहीं, एकदम नहीं बनाए। मतलब एकदम जरूरी नहीं है कि सही बनाए 100%। तो इस रिस्क को क्या कहते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना है वो सही बना है कि नहीं बना है? भाई इस रिस्क को कहते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कब होता है? ऑडिट से पहले होता है। इनहेरेंट रिस्क कंट्रोल लगाने से पहले है, और कंट्रोल रिस्क किससे पहले है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट से पहले है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है? ऑडिट होने से पहले का रिस्क। करेक्ट। व्हाट इज ROMM? रिस्क दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड प्रायर टू ऑडिट। ओके, ओके। तो भाई अगर हम कैलकुलेशन का बात करें कि क्या तुम एक बात, तुम चांसेस का बात कर रहे हो, तो क्या ये मैथमेटिकली प्रूव हो सकता है कि लाइक इनहेरेंट रिस्क 20% है, कंट्रोल रिस्क 5% है, तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना % रिस्क होगा? कोई लिख के दे सकता है क्या कि इनहेरेंट रिस्क 20% है, कंट्रोल रिस्क 5% है? कोई बोल सकता है? नहीं भाई, इनहेरेंट रिस्क तो एस्टिमेशन होता है, लेकिन कंट्रोल रिस्क एस्टिमेशन नहीं होता है। उसके लिए ICFR होता है, IFC टेस्टिंग होता है। IFC टेस्टिंग में अगर 100 कंट्रोल है उसमें से 20 अगर पास कर जा रहा है, अगर 80 पास कर जा रहा है, मतलब 20% चांसेस है कि गलत है, क्योंकि 20 कंट्रोल तो खराब हो गया, इफेक्टिव काम नहीं कर रहा है। तो 20 कंट्रोल अगर इफेक्टिव काम नहीं कर रहा है, मतलब कि तुम्हारा 20% चांसेस है कि तुम्हारा इंटरनल कंट्रोल काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो फेल हो गया ना, IFC टेस्टिंग में फेल हो गया। तो कंट्रोल रिस्क हम लोग ढूंढ सकते हैं। इनहेरेंट रिस्क एस्टिमेट होता है।
अगर इनहेरेंट रिस्क एस्टिमेटेड है और कंट्रोल रिस्क है तुम्हारे पास, तो तुम रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट एक वैल्यू में दे सकते हो। अगर एस्टिमेट करते हैं इनहेरेंट रिस्क 50% है या 80% है इनहेरेंट रिस्क, और इंटरनल और कंट्रोल रिस्क है तुम्हारा 10%, तो रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट कितना है? रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट मतलब क्या कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितना गलती हो सकता है? बहुत ईजी है भाई। इनहेरेंट रिस्क 80% था, उसमें से उसके बाद कंट्रोल रिस्क 5% है, मतलब कि 95% जो इनहेरेंट रिस्क 80% है कि 100 रुपये अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना है तो उसमें 80% गलत होगा। लेकिन अगर कंट्रोल लगा दिए थे तो कंट्रोल लगाने के बाद कंट्रोल रिस्क कितना हुआ है? 5%। मतलब कंट्रोल कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है? 95% काम इफेक्टिवली कर रहा है, सिर्फ 5% वो ढूंढ नहीं पा रहा है। तो 80% का 95%, 80% का 95% कंट्रोल से हम उसको ठीक कर दे रहे हैं। तो 80% ऐसी 5% ऐसा है जो हम कंट्रोल रिस्क भी नहीं, उसको कंट्रोल भी उसको ठीक नहीं कर पा रहा है। तो 80 का 5% कितना है? 80 का 5% होता है 12/40, मतलब 4%। रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट हो जाएगा 4%। इनहेरेंट रिस्क वैसे 80% चांस था फाइनेंशियल स्टेटमेंट खराब होने का, लेकिन कंट्रोल लगाए तो 80% जो गलती होने वाला था उसका 80% का हम लोग 95% हो गया कि भाई हम सही इफेक्टिवली काम होगा। सिर्फ 5% हो सकता है कि इनहेरेंट रिस्क हम ढूंढ नहीं पाएंगे, जो कंट्रोल लगाए हैं वो इनहेरेंट रिस्क नहीं ढूंढ पाएगा। इनहेरेंट जो रिस्क है उसका जो स्टेटमेंट हुआ वो कंट्रोल में ढूंढ नहीं पाएगा। तो 80% का 5% नहीं ढूंढ पाएगा, करेक्ट। मतलब 4% जो रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट है वो 4% है। मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद हो सकता है कि 4% मिस्टेक है कि वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि 80 पहले था फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए थे तो 80% मिस्टेक था, कंट्रोल लगा दिए। कंट्रोल इसी लगा कर 80% जो इशू था उसका 95% हम ठीक कर दिए, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब सिर्फ 4% खराब है, 96% वो सही हो जाता है। ओके, तो ये हो गया रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट। लेकिन ये 4% का जो रिस्क है ये बिफोर ऑडिट है, ऑडिट नहीं हुआ है तब हमको दिख रहा है कि अच्छा इतना मिस्टेक है। तो भाई तुमको क्या लगता है कि ऑडिट होकर तुमको सारा रिस्क पता चल जाएगा और तुमको तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एकदम सही पता चल जाएगा, अच्छा यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसमें इतना ही मटेरियल में स्टेटमेंट है, तुमको पता चल जाएगा? नहीं। ऑडिट हर वक्त आपको रीजनेबल अश्योरेंस देता है, कभी एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं देता है या गारंटी नहीं देता है। क्यों? ऑडिट रिस्क की वजह से। क्या ऑडिट करने के बाद भी हो सकता है कोई मिस स्टेटमेंट होगा जो आप नहीं ढूंढ पाए, और हो सकता है वो साला मिस स्टेटमेंट मटेरियल मिस स्टेटमेंट। मतलब तो तुम बोल रहे हो कि जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है वो तो रिस्क है बिफोर ऑडिट, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गलती होगा लेकिन बिफोर ऑडिट। तो ऑडिट होने के बाद भी हो सकता है कि हाँ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो 4% रिस्क था कि हाँ 4% गलत है, वो हो सकता है कि 4% रहे। नहीं, जरूरी नहीं है कि 4% रहेगा ऑडिट के बाद। हो सकता है ऑडिट इतना अच्छा हुआ है कि तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो 4% गलती था वो 3%, वो 1% रहेगा कि 3% वो ऑडिट में पकड़ा गया, 1% नहीं पकड़ा गया। उसको कहते हैं ऑडिट रिस्क। तो ऑडिट रिस्क क्या होता है कि ऑडिट होने के बाद भी आप गलती नहीं ढूंढ पाए। करेक्ट। तो ऑडिट रिस्क वो है। तो ऑडिट रिस्क कैसे होता है? ऑडिट रिस्क बहुत ईजी, जैसे कि अभी 4% था कि तुम्हारा रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट है 4%, तुम्हारा ऑडिटर आके बोलता है कि तुम्हारा एंटिटी देखने से हमको लगता है ना कि हम इसको एज एन ऑडिटर हम इसका 90% गलती हम ढूंढ सकते हैं तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो पहले था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट 4% गलत था और 4% का 90% गलती तो ऑडिटर ढूंढ देगा। तो 4% का 90% कितना होता है? 3.6। तो 4% में से 3.6% तो ऑडिटर ढूंढ देगा, लेकिन तभी 0.4 मिस स्टेटमेंट तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रहेगा ही। तो जो 0.4% मिस स्टेटमेंट है वो कौन सा रिस्क है? वो ऑडिट रिस्क है, कि ऑडिट के बाद भी आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो व्हाट इज ऑडिट रिस्क? ऑडिट रिस्क का एक सर डेफिनेशन दिए हैं। ऑडिट रिस्क इज द रिस्क दैट ऑडिटर गिव्स wrong opinion when the FSR materially misstated। फाइनेंशियल स्टेटमेंट materially misstated था लेकिन ऑडिटर क्लीन ओपिनियन दे दिया। क्यों? क्योंकि ऑडिट रिस्क था भाई कि 4% में से हम 3.6% ही ढूंढ पाए, 0.4% तो रुकी बच ही गया। करेक्ट। तो ऑडिट रिस्क को कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं? बहुत ईजी है भाई। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट मल्टीप्लाइड बाई डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क है, अरे डिटेक्शन रिस्क वही है कि ऑडिटर ढूंढ पाएगा कि नहीं। रिस्क दैट ऑडिट प्रोसीजर विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट अ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। व्हाट इज डिटेक्शन रिस्क? डिटेक्शन रिस्क है कि ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा लेकिन तब भी हो सकता है कि कोई मिस स्टेटमेंट पकड़ाए नहीं, वो डिटेक्ट ही नहीं हो पाए। तो जो डिटेक्शन रिस्क है उसको मल्टीप्लाई करो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट से, तो पता चल जाएगा कि ऑडिट रिस्क कितना है।
रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कैसे निकाल लेते हैं, इनहेरेंट रिस्क को मल्टीप्लाई किए थे कंट्रोल रिस्क से। इनहेरेंट रिस्क कितना था, इतना इनहेरेंट रिस्क था, कंट्रोल उसको इतना गलती ढूंढ दे रहा था, तो इतना ही परसेंट कंट्रोल रिस्क था कि इतना कंट्रोल, ये जो कंट्रोल है इतना रिस्क नहीं ढूंढ पा रहा है। तो इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई बाय कंट्रोल रिस्क करते थे, तब पता चलता था कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होगा। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बना है वो कंट्रोल लगाने के बाद भी इतना परसेंट गलती होगा, ठीक है। लेकिन यह रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बिफोर ऑडिट। आफ्टर ऑडिट भी एक रिस्क आता है, उसको कहते हैं ऑडिट रिस्क। तो आफ्टर ऑडिट कितना रिस्क आया उसको कैसे ढूंढेंगे, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मल्टीप्लाई बाय डिटेक्शन रिस्क, की ऑडिटर कितना परसेंट ढूंढ नहीं पाएगा, मल्टीप्लाई करो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। इसके ऊपर सर केस स्टडी दिए हैं पेज नंबर 7 पे, कि कंसीडरिंग द नेचर ऑफ बिजनेस एंड ऑपरेशन ऑफ बीबी प्राइवेट लिमिटेड देयर आर 40% चांस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियल मिसस्टेटमेंट। जो बिजनेस का ऑपरेशन है और जो नेचर है उसको देख के लगता है कि 40% चांस है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड होगा, ठीक है। टू डील विद दिस मैनेजमेंट डिजाइंड एंड इम्प्लीमेंटेड इंटरनल कंट्रोल। अभी तक इंटरनल कंट्रोल नहीं लगा था, मतलब इंटरनल कंट्रोल लगाने से पहले कितना परसेंट चांस है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत होगा, 40% चांस। तो कौन सा रिस्क है, इनहेरेंट रिस्क, क्योंकि कंट्रोल तो नहीं लगा था। दीज कंट्रोल्स आफ्टर एप्लीकेशन आर एक्सपेक्टेड टू बी 75% इफेक्टिव। मतलब जो कंट्रोल लगाए हैं वो 75% इफेक्टिव है, मतलब 100 कंट्रोल्स में 75 कंट्रोल्स इफेक्टिव है, मतलब 25 कंट्रोल्स इनइफेक्टिव है। तो कंट्रोल रिस्क कितना है, 25%। की कंट्रोल लगाने के बाद भी 25% चांस ये है कि तुम्हारा मिसस्टेटमेंट होगा, ठीक है। इनहेरेंट रिस्क 40%, कंट्रोल रिस्क 25%, क्योंकि 75% तो इफेक्टिव है, ओके। तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना हुआ, 40% इंटू 25%, 10% तुम्हारा हो गया कौन सा रिस्क, 10% इज योर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। कि इनहेरेंट रिस्क पहले 40% था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 40 को चीज़ गलती होगा, लेकिन अब हम कंट्रोल लगा दिए हैं। कंट्रोल लगाने के बाद जो 40 को चीज़ गलती होगा ना, उसका 75 चीज़ तो हम कंट्रोल ही ढूंढ देगा। तो बाकी का जो 25% चीज़ है, 40 चीज़ का 75% कंट्रोल ढूंढ देगा, मतलब 30 को गलती कंट्रोल ही ढूंढ देगा, बाकी का 10 को जो गलती है वो ढूंढ नहीं पाएगा। तो 100 में से 40 को इनहेरेंट रिस्क था, इनहेरेंट रिस्क को हटा दिया गया, 30 को हटाया कौन, कंट्रोल, लेकिन तभी 10 को बचा हुआ है। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 10% गलती है बिफोर ऑडिट। ऑडिट करवाओगे तो भी रिस्क है कि ऑडिट प्रोसीजर लगाने के बाद हो सकता है कि जो 10 गलती उसमें पूरा 10 गलती नहीं पकड़ा है, हो सकता है कि 9 ही गलती पकड़ा है। तो हम ऑडिट रिस्क कैसे निकालेंगे, डिटेक्शन रिस्क ढूंढो। डिटेक्शन रिस्क के लिए आगे कुछ बोला हुआ है, देखो, ऑडिटर एक्सपेक्ट्स टू डिटेक्ट 80% मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ऑडिटर को लगता है कि जो भी मिसस्टेटमेंट है ना उसका 80% हम ढूंढ देंगे, मतलब ऑडिट रिस्क कितना है, 20%। ऑडिट रिस्क नहीं, डिटेक्शन रिस्क, उसको क्या लग रहा है 20% वो ढूंढ नहीं पाएगा। पहले से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 10% गलती था कंट्रोल लगाने के बाद भी, और 10% गलती में भी 80% ढूंढ सकता है ऑडिटर, बाकी का 20% नहीं ढूंढ पाएगा। तो ऑडिट रिस्क कितना हुआ, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना था, 10%, ऑडिट रिस्क कितना है, 20%, करेक्ट। तो डिटेक्शन रिस्क कितना है, 20%, क्योंकि 80% तो ढूंढ देगा, 20% नहीं ढूंढ पाएगा, तो डिटेक्शन रिस्क कितना है, 20%। तो तुम्हारा 10% था तुम्हारा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, उसको मल्टीप्लाई करो तुम डिटेक्शन रिस्क, तो 10 इंटू 20%, 2%। तो ऑडिट रिस्क ये है कि 2% ऑफ मिसस्टेटमेंट इवन आफ्टर ऑडिट नहीं ढूंढ पाया जाएगा। 100 को सामान में से 100 अगर स्टेटमेंट बात लिखा हुआ 100 असर्शन है अगर तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसमें 2 असर्शन अगर मिसस्टेटेड भी होगा ना, तो ऑडिट उसको ढूंढ नहीं पाएगा। पहले 40 को मिसस्टेटमेंट था, कंट्रोल लगाने की वजह से सिर्फ 10 को मिसस्टेटमेंट बचा। 10 को मिसस्टेटमेंट में से ऑडिटर 10 को मिसस्टेटमेंट में से 80% 10 का, दैट इज 8 को मिसस्टेटमेंट वो ढूंढ देगा, तो बचेगा कितना, 2, कि ऑडिट के बाद भी 2 गलती मिलेगा, वही चीज़ है, ठीक है। सो या और एक और बात, उसका हम फॉर्मूला दिए हैं पेज नंबर 10 पे, ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इंटू डिटेक्शन रिस्क, और रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कैसे आता है, इनहेरेंट रिस्क इंटू कंट्रोल रिस्क, ओके, करेक्ट। ऑडिट रिस्क कैन नेवर बी जीरो, ऑडिट रिस्क कैन नेवर बी जीरो, श्योर बात है, कोई हालत में नहीं होगा। क्यों, क्योंकि भाई ऑडिटर विल ऑलवेज गिव रीजनेबल एश्योरेंस एंड नेवर एब्सोल्यूट एश्योरेंस, दैट यू नो, करेक्ट। और ऑडिटर विल ऑलवेज गिव reasonable assurance view because there is an inherent limitation to audit,
वो हर वक्त रहेगा ही रहेगा. So now we'll take on in next class. So done for day 1.